Hello everyone, welcome to Law Preps channel once again, and I'm so happy to have Vipul with me. So welcome Vipul to our channel. So many videos you must have watched. How do you feel today being here, doing the same thing you have, seen interviews of? Thank you, ma'am, firstly for inviting me and then for guiding me also to get to this pedestal that I can get into this interview. And वैसे भी मैम I have actually seen जैसे around 150 interviews of CLAD toppers per se. So I can give this. So I don't have Good, any you are problem. well prepared for the interview also, है ना? 150 toppers का interview. I have watched all of YouTube. जैसे 11th में तो जैसे फॉर मोटिवेशन और इवन आपको कभी कभार चाहिए होता है ना कि यू आर स्टडिंग बट यू आर नॉट स्टडिंग, तो यू नीड कि स्टडी से रिलेटेड कुछ चल रहा है, उसके लिए आई यूज टू वॉच दीज वीडियोज एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी फन to watch how these people used to do what they did. So maybe someone gets inspired by watching this also. चलो गुड सही बात है, आपने इतने वीडियो देखे हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए, तो होपफुली आपके वीडियो से भी कोई इंस्पायर होगा. हाँ, एक्चुअली जैसे कुछ टिप्स हैं जो मैंने भी इम्बाइब करी तो काफ़ी फ़र्क तो पड़ा ही है. Good. So before we start, congratulations for such a great score. We are very proud here at Law Prep for your performance. We were hoping for this performance. I think you were also hoping for this performance. Yes, ma'am. Obviously, I was hoping for this. Last year also I gave CLAT. I got AIR 1.5. Yes, everyone. I would like to tell you that Vipul was a 2-year student with us, and along with his 11th also, he had cleared NLS, because we asked all 11th students also to appear at least to know कि कैसा paper है, क्या है, and along with that paper, he had cleared CLAT and he had gotten a rank which would have given him a seat in NLS. आराम से उसका NLS में selection हो रहा था. और इस साल भी ऐसा बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन हर साल दर साल सेम परफॉर्मेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है. सो यस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड मैम, व्हेन यू आर सेइंग कि मैं 2 साल एनएलएस अचीव किया, आई वांट टू ऐड दिस. सी, आई स्टार्टेड इन 11th. आई एक्चुअली गेव क्लैट in December only, so it was like I joined law prep on June 10th. हाँ, जून पे. I attended Anupama ma'am's class on June 9th. It was a demo class. तब तक I was not unsure कि ये coaching I watched or went to 2-3 coachings, and then I attended your taught class. It was when I had absolutely no clue about CLAT. Even that's a good backstory how I got into CLAT. हाँ, तो ये We would get into it later, but the reason I am saying this is, see, till 10th, I was a smart person. See, I am a blend of my father and my mother. So my father is very academically sound. My both parents are CA. And my mother is very confident and bold. So I think I have got those values. So मैंने जब start किया था, तो जैसे अगर if anyone is watching and thinking कि okay, I am speaking in English or I am speaking fluently even, and if he or she is thinking कि what would we do, we are from this background, I want to clear this. See, firstly, when I started, जब मैंने start किया था law prep में और जब मैं पहली बार आया था, I was so shocked कि जैसे reception पे side में there are these people who sit ना before classes. So I came for the first time. There were 2-3 students reading English books. I had never read more than 1 or 2 books, and that too was a Ronaldo biography one. So I had never इससे read. पहले आपने कभी रीड, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनका होता है कि दे आर मतलब बहुत रीड करते हैं. आपका हाँ. रीडिंग से रिलेटेड. मैं आई एम स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ दिस कि आपको जब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ना, आप उस लेवल पे नहीं करते. पर उसके बाद ऐसा नहीं है. मैंने पिछले साल 11th में 6 महीने वोकैबुलरी एंड आई हैव वर्कड दिस हार्ड. सो द फैक्ट इज दैट आई हैव गॉट दिस कॉन्फिडेंस नाउ आफ्टर वर्किंग सो हार्ड. सो मेरा ऐसा कोई खास 98% वाला मैं कभी था नहीं. एंड I was obviously 90% consistently, and I worked very hard in 10th. जैसे मैम ये आपको याद होगा नहीं, but I got my 10th result, guys. हाँ, and you, I know, I talked to you. आपके मदर ने बात कराई थी कि मैम इसको समझाओ. For anyone watching and thinking what we are talking about, so my 10th result was on 22nd July. It's my birthday. So, and surprisingly, the CBSE also announced 12th results on that day. My sister got 98.6% in that. I had enrolled in law prep already till that point. So my sister got her result. I got my result. I got like 90.4%. And see, if I am whining about 90.4%, if anyone's watching and thinking, what is he talking about? The fact is that I had genuinely worked very hard for it. And I think उसका रीजन है कि I worked very hard in CLAT also. So the story was कि 22nd July was my birthday also. So I got 78 in English in my 10th boards.
So I was devastated कि ये क्या है. I am preparing for CLAT and all this. I आपको had लगा कि यार taken time from इतनी you. मेहनत करने के हाँ, बावजूद भी. ma'am is so loving and so genuinely willing to help every single enrolled, even non-enrolled. I think you give your number on Yes. YouTube and stuff. So I messaged her कि I want time for doubts. So we had like 3-4 times कि अब करें कॉल तब करें. तो फिर मैंने उस दिन actually I had something planned for the next day क्योंकि संडे था. तो उस दिन I was going somewhere with my mother और मेरा मूड बहुत खराब था. तो मैम का कॉल आया कि शाम को कर लेगा. तो मेरी मम्मी ने मेरे से फोन ले लिया कि मैम इसका मूड बहुत खराब है, आप इससे बोलो. तो मैम यू मोटिवेटेड, यू आर विद मी सिंस देन. अब Yes. 1.5 साल पहले, अब 1.5 साल बाद इंटरव्यू दे रहे हैं. Correct. तो द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग इज कि आई हैड नेवर रेड बुक्स. I was very hardworking, that's for sure. I worked very hard. See, anyone watching, I think I have the best, or if anyone objectively sees now, I have the best way to do things. It's like in 11th, I didn't take any coachings or stuff. I took a maths. I have commerce maths also, so that's a whole different story why I have that. But हाँ, कॉमर्स मैथ्स का भी अलग स्टोरी है. हाँ, बट ओवरऑल अभी के लिए यही है कि आपने क्लैट के लिए डिसीजन लेने से साथ साथ यू वर डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड क्योंकि आपने 10th में भी इतना सारा. So if anyone is watching और वो सोच रहा है कि can they clear in 11th, so my point was I joined law prep with weekend batches. जो लोग कहते हैं कि I did that because मेरे को पता था कि I can study. So I did with weekend batches, without English background, without reading a lot of novels. And in 5 months, without taking a dummy school, I am in St. Xavier's. I am very thankful to my school also. And without taking a dummy, only giving 42 marks, I got NLS Bangalore. So I think, and this year also I worked very hard. After studying so much, again I am getting NLS Bangalore. So you can decide, and after watching this video, you can also understand everything is possible. It's not like I was attending foundation batch class 1 week before CLAT, and everyone is like, कि एक week before CLAT, do this, newspaper बंद कर दो. I read a 350-page judgment of EWS, which not EWS, hijab, you said. Yes. For to Read us to read. judgments, correct. You said to us कि read judgments. So keeping it in Hindi, जैसे मैंने वो judgment पढ़ा, it's a different है कि आपको लगता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं. पर वो read किया और उसके बाद क्लैट दिया. ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले सिर्फ जीके करो, ये करो. Everyone has different things. हाँ, सबके लिए अपने अपने स्ट्रेंथ्स है, अपने अपने जैसे वीकनेस. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने 6 महीने दोनों अकेडमी पेरेंट्स करी. सीए हैं, हाँ, तो फिर आपने लॉ क्यों डिसाइड किया? हाँ, मैंने है ना, I am a different person from my sister. So my sister was always academically sound. She's in IIT Bombay right now, guys. So she is very academically sound. I was also sound working. घर वालों के हिसाब से आप थोड़े कम होशियार थे, वो होशियार बच्ची थी. नहीं, ऐसा कभी पेरेंट्स ने किया नहीं. मतलब कम होशियार वाला नहीं था मैं. एक्चुअली मेरी बहन बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्मर थी. पर मैंने क्या है कि 9th-10th में तो करी मैं. हाँ, एक चीज और, मैंने ईयर 2021 में 1000 आवर्स वैलोरेंट खेला है. अच्छा. मेरा वैसे आता है कि आपका एक ईयर में कितना प्लस होता है या कितना माइनस हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स. तो मैंने 2022 में -500 आवर्स और 2023 में कंपेयर टू 2022 Okay, you are talking about some game. Yes, Okay, Valorant. so So I don't know. if you are from any background, you can actually do it. The reason is for me saying is कि I have seen so many CLAT topper videos. Like I told na. So I've always seen कि people are, you look at these videos and think people are flawless. They don't have downs. I'm speaking this from the bottom of my heart कि आप कर सकते हो अगर आप करो, मेहनत करो. पहली बात, मेहनत करनी पड़ेगी. बहुत मेहनत की है. और ऐसा नहीं से it's a story between being complacent and being underconfident. It's always like that. और जो मैम ने सवाल पूछा कि आपके पेरेंट्स ही हैं, आप ये कैसे करने लग गए, तो मेरी बहन का यही 2 साल निकला. मैं 2 साल वैलोरेंट खेला. I had a very good friend squad. I'm not a very good player, but I used to. अब क्या करें, 9th-10th में I used to have sometimes a argument with my father. वो कहते थे कि इतना क्यों खेल रहे हो, but मैंने बोला I have nothing to do. I got 98.6 something in 9th because it was online exam. तो सबको पता कैसे भी. कोविड वाला नहीं था. कोविड वाला. तो वो कुछ ऐसे कुछ करने को था नहीं. तो I think मैंने है ना, ये जब my mother was ill when I enrolled in law prep. तो my father and me came to law prep, and this was another gesture by you. I don't think this would, at least you would not remember. My first time I told ना कि taught की class attend करी. My father had come to pay the fees.
So you just came out of the class. I was standing with my father. So you told him कि he's very curious. He can do good. So yes, you no, showed. I remember. हाँ, I अच्छा, remember because you asked me doubt in the very first class. हाँ, so- That usually doesn't happen. हाँ, इससे if anyone's watching ना, ऐसा नहीं है कि इतना भी स्ट्रेट है कि ये सब करते करते ये मैंने सब छोड़ दिया ये सब अब उसके देखो बाद पॉइंट ये है कि आप अगर गेम्स भी खेलते हैं, आप अगर खेलते थे। खेलते थे मतलब अभी तो जो देख रहा है वो खेलता होगा, हाँ, और अगर आप रीडर नहीं हैं, अगर आपका इंग्लिश बहुत शार्प वाला बैकग्राउंड नहीं है, बिल्ड हो जाएगा। हाँ, तो भी अगर आप क्लैट लॉन्ग टर्म में प्लान करते हो तो 101% कर सकते हो, क्योंकि विपुल तीनों ही चीज़ों में था। वो बहुत ही हद गेम खेलता था, जहाँ तक कि पिताजी से डांट पड़ती थी। वो बिल्कुल भी किताबें नहीं रीड करता था अनटिल अनलेस वो कोई इंस्पिरेशन से रिलेटेड रोनाल्डो की किताब आपने पढ़ी थी, वो किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी मेरे को। गिफ्ट करी वो, इसलिए वो भी तो चलो पढ़ लेते हैं। या ऐसा कि भाई आपने बहुत रीड कर रखा हो क्लैट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बावजूद अगर आप लॉन्ग टर्म क्लैट के लिए जैसे प्लान करते हो कंसोर्शियम में तो हो सकता है, राइट? हाँ, वैसे तो कंसोर्शियम ने 2023 के रिजल्ट से मतलब जो इस साल हुआ दिखा दिया कि ये सब करने के बाद भी हो सकता है आपका। वो पर भी उसको definitely, प्रेसिडेंट नहीं लेना चाहिए। उसको प्रेसिडेंट नहीं लेगा बिकॉज प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। I prepared for everything. जैसे CLAT is of 5 sections, right? 3 are IQ based. I gave my first mock, and this also before starting, just after starting this, I have a very genuinely strong advice कि do this. There is this book called Read Better and Faster. You should, before giving your first mock, and if you have given your first mock, जब हमने स्टार्ट किया था तो I got in with droppers in June. There was this batch, so I was the 11th in with droppers. So I used to come in morning batch. राइट। तो उसमें है ना you told कि हाँ you told कि छुट्टी थी, क्योंकि फिर वीकेंड बैच तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था कि जरूरत क्या है। मैं बाद में तो वीकेंड बैच में था, पर जो मैम ने भी कहा था कि अभी थोड़े दिन सेटल होने दो फिर मॉक देना। तो मेरे हिसाब से आप लिमिट रख लो कि 25 दिन में आप मॉक देना स्टार्ट कर दोगे, एंड 25 डेज के लिए इट्स अ वेरी चीप एंड स्मॉल बुक, आप वो खरीदो और उसमें सेशंस है। बुक नेम इज रीड बेटर एंड फास्टर। रीड बेटर एंड फास्टर डू बाय नॉर्मन लुइस, वो वर्ड पावर। अच्छा, वर्ड पावर मेड इजी वाला लाइटर से। हाँ, इसका थोड़ा बहुत लॉ प्रेप ने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक में डाल रखा है पहले से, yes. तो वो वाला पार्ट भी है। पर अगर आप लेके 30 दिन और धीरे धीरे करो, कोई इसमें भगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको सच्ची में मेरा फर्स्ट मॉक 70 से स्टार्ट हुआ था, एंड आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका मॉक स्टार्ट 40 से होता है, 3 महीने बाद 50 पे पहुंचते हैं और एंड में जाते हुए भी 60 पे। द मोस्ट कॉमन स्कोर 40, 50, 60 है। अब ये क्लैट को छोड़ दो जो हुआ असली में, बट जो लॉ प्रेप या ऐसे कोचिंग के मॉक्स होते हैं उनमें ये होता है। तो आप है ना अपनी फंडामेंटल, अगर हम एकदम कोर एनालिसिस पे करें, व्हाट इज दिस पेपर, दिस इज आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन यू हैव टू अप्लाई। अब अगर सी देयर इज दिस थिंग कॉल्ड बनिया बुद्धि, तो वो आई हैव दैट। बनिया बुद्धि, ओके। अच्छा, आप बिल्कुल खींचा, आप बनिया ही हो क्या? आई एम जैन वैसे, बट अभी हाँ, वो तो बोलचाल में तो बनिया बुद्धि में आ जाते हैं। तो वो वाली चीज होती है। तो आई थिंक जो भी वीडियो भी देख रहे होंगे या एनीथिंग ना, अगर आप किसी को क्लैट के क्वेश्चन या जो है वो आप पढ़ के समझा दो कि क्या है, आई थिंक उसके बाद 90% से कम एक्यूरेसी लाना भी मुश्किल है। हाँ, तो बिकॉज आप टेक इट एज इफ आप 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो, वैसे एक्सप्लेन कर पाओ तो वो बेस्ट है। तो आप समझो ना वो क्यों है। दैट रीजन इज बिकॉज यू वर्क ऑन द वोकैबुलरी, दैट्स बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। सो इफ आई नरेट the entire thing to someone and explain it, the thing which would happen is that they would understand it, and then the questions are not hard per se. There are some hard questions in every mock, which is the differentiating factor, but generally till 70 it's not very hard if you fundamentally understand that there are only 2 parts you have to do in this paper. Firstly, you have to understand what they are saying, and second, you have to apply what they are asking. So the biggest problem with people scoring under 70 genuinely, and I think you would also agree, that they don't want to work on the first thing because it's boring, hard, and not directly, it would not directly show the result. See, I am now very good in vocabulary. See, after working 1.5 year पहले you might not, विपुल जो है उसका वोकैब हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब आप क्लासेस भी ज्वाइन करते हो तो टीचर सबसे पहले आपको इसी पे काम करने को कहता है, पर ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग वाला काम है। मैंने कहा ना कि 2 चीजें हैं। अब वो सेकंड चीज पे अगर आप करते रहोगे आपको समझ ही नहीं आ रहा वो लिख क्या रहा है, तो आप आंसर क्या दोगे। आई हैव रीच्ड अ लेवल आफ्टर डूइंग सो मच आरसी। मैं सिविल वॉर इन अमेरिका इन 1660
जिसकी कोई लैंग्वेज के वर्ड्स अलग होते हैं, उनके स्टेट्स के नाम अलग होते हैं इंसान के, वो भी समझ सकता हूँ। क्योंकि आप इतनी वोकैबुलरी पढ़ोगे ना, तो आपकी वोकैबुलरी डायरेक्टली अप्लाई होगी ऐसा नहीं है, ये भी क्लियर कर दूं। इनडायरेक्टली वो इतना हेल्प करती है, और आपको जब, ये तो मेरे हिसाब से सब लोग जो देने का सोच भी रहे हैं, ये तो सब मान ही चुके हैं कि दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू नॉट अंडरस्टैंड एंड मतलब टू अंडरस्टैंड एन आंसर। तो अगर आप वोकैबुलरी पे काम कर दोगे तो आपका 50% ऑफ द वर्क डन है। और जैसे मैंने 11th में ये सब किया, 12th में ये सब बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को अब जरूरत ही नहीं। अब मेरे को कोई भी पैसे दे दो, मेरे को जरूरी नहीं है हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, पर मेरे को सबका समरीली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पता है। कॉम्प्रिहेंशन पता चल जाएगा। तो वो वाली चीज काफी हेल्प करी। और जो मैंने कहा ना कि एक बुक पढ़ी, मैं पिछले साल में 2023 में कम से कम 25 बुक्स पढ़ चुका हूँ विद माय क्लैट प्रिपरेशन गाइस। आई थिंक वो भी काफी काम करता है। That also helps. देखो रीडिंग तो क्लैट में वैसे भी जरूरी है, तो he had completed within a year 23 books. 25 at least. 25 books, very And good. see what exam in India would give you the chance कि आपको अखबार Correct. पढ़ना है, हाँ. आपको जाके टीचर से लड़ना है, basically that's what you have to do in CR. और उसके बाद आपको नॉवेल्स पढ़नी जो आपको पसंद है genuinely, जैसे fiction novels is what I used to read a lot because I am very good in economics and real life stuff. वो भी बहुत, वैसे मेरे पर्सनल इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में ज़्यादा है। कॉमर्स मैथ्स मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को सीए फाउंडेशन लेना था 12th के बाद। माय बोथ पेरेंट्स आर सीए, सो आई एम। फिर आपने लॉ कैसे किया? लॉ इसलिए किया क्योंकि मेरे को 2 साल कुछ पता था कि मैं कुछ यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आफ्टर सीइंग माय सिस्टर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 2 years, आई न्यू आई हैड टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम। एंड जेन्युइनली जब मैंने वो आपकी टॉट वाली क्लास ली ना, उस वक्त समझ आया कि हाँ ये करना है, ये करना है। और उसके बाद आई enrolled obviously in law prep, 2-year foundation. I was in law prep, 2-year foundation, rankers batch in super 30. एंड वो किया मैंने ये सब। और कॉमर्स मैथ्स का क्या है, मैंने वो फिर भी कर लिया। अब जैसे कोई वीडियो देख के ये बच्चों का ही रहता है कि 12th के साथ साथ कैसे करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज काम की मैं बता देता हूँ। जैसे इतने सारे लोग हैं, जैसे एक बार सुकेश सर है ना, किसी को स्टूडेंट को अटेंड कर रहे थे जो आया था काउंसलिंग के लिए, तो उसने पूछा था कि क्या सब्जेक्ट्स लें, तो सर ने बोला इको नहीं होनी चाहिए, अकाउंट्स मत लेना, मैथ्स मत लो। उसकी स्कूल में बीएसटी भी दे थे तो वो भी मत लेना। तो मैंने देखा कि ये तो सब मेरे पास है, एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जो मना किए सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर कोई भी सोच रहा है, दिस इज द बेस्ट आंसर आई थिंक अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। चूज सब्जेक्ट्स जो आप 3 महीने के लिए छोड़ सकते हो और आपको ट्यूशन नहीं लेनी। अगर आप वो जैसे मैं अकाउंट्स में अभी तक इस साल में 1 दिन 2 घंटे पढ़ा है, जिसमें एक बार मेरे 40 में से 38 आए हैं और एक में 80 में से 38 आए हैं, वो 2 घंटे पढ़ के। तो उसका क्या कारण है? क्लास में मेंटली प्रेजेंट रहना जब नहीं, क्लास में मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं था इस साल। पिछले साल मेरे जैसे ये, और ऐसे एक बार मैं ये दे देता हूँ, कोई वॉच कर रहा है तो मैंने क्या किया, मैं जून में ज्वाइन किया लॉ प्रेप। फर्स्ट में 70 आए, 3 महीने बहुत खुश रहा। फिर किसी जान पहचान वाले ने साथ में ज्वाइन किया था, उसके 40 से चालू हुए थे। फिर मेरे अगस्त बीत गया, तब भी अच्छा है। मैंने कहा ना, इट्स अ ड्राइव बिटवीन बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट। आप देखते हो 12th वाले भी 40-50 पे घूम रहे हैं, मैं तो बाय डिफॉल्ट 70 पे हूँ। मेरे को क्या करना है, आ जाएंगे। आई हैड दिस गोल कि आई वुड बी इन सम स्कूल क्लब आई वाज, तो कि कंटिन्यू करें या क्लैट में टाइम पास हो रहा है, ये करें वो करें। तो आई हैड दिस थिंग कि मैं ना 85 का टारगेट है मार्च तक, अगर आ जाए तो ठीक है, आई वुड कंटिन्यू विद ऑल दिस स्टफ। वो छोड़ना पड़ा सैडली, आई थिंक वो एक ज़रूर है। पर जो हमारा बात चल रही थी कि मैंने फिर 6 महीने, हाँ 6 महीने ये किया। मेरी स्कूल की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी थी इस पूरे टाइम में। सिर्फ लास्ट के वक्त कुछ दिन तो ऐसे भी थे, नाउ अभी तक मैंने सब बोल दिया कि सब हो सकता है। अब आई विल टेल की स्ट्रगल वाली चीज़ थोड़ी। देयर वर सम डेज इन 11th व्हेन आई हैड टू गो टू स्कूल 7 o'clock। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। My house is just in front of the school almost, so I used to get free at 1:30. There was a GK marathon in law prep, so it was from 2 to 7. My driver used to come pick me up from school. I would go to my house. Generally, there's no one at 2 in my house. So you go up to my house, open the door, pack the tiffin, eat that in car, come at 2 in law prep, study till 7 in marathon, go home, and then eat whatever I have to. And so, but did you enjoy that? Did you enjoy that process? That is the best thing. I think this is the best 2 years in my life because आपको समझ आता है ना। जैसे there are 2 things which I think everyone, not even if any of my friends are watching ना, there are 2 types of things which people don't understand. There is leisure and there is pastime. मैंने अपना पास टाइम 0 कर रखा है। अभी मैं इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, वैलोरेंट भी बंद कर दिया था,
आई हैव जीरो. मैंने अभी लास्ट 2 महीने एग्जाम से पहले इतना चिल है ना कभी नहीं किया. सब पढ़ना है पढ़ो, जब नहीं पढ़ना मैं दिन में आराम से. आई हैव नेवर स्लेप्ट लेस देन 8 hours इन माय होल क्लैट प्रिपरेशन. जरूरत ही नहीं है. आप है ना, आप जब आप डू दिस थिंग ना, राइट डाउन व्हाट यू डू इन अ डे एवरी आवर. लाइक 7 to 8 आपने क्या किया, 8 to 9 क्या किया, 9 to 10. मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो कर दी. देयर वर सम थिंग्स, जैसे आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब. जैसे दिस इज 150 interviews of toppers, so yes, I believe you used to मैम, वो watch. तो सोचो आप, तब है जब मैंने क्लैट चालू कर दिया. उससे पहले कितना था. आई थिंक वो एस्केपिज्म था थोड़ा, क्योंकि 20 थिंग्स वर बैड. यू लूज सम रिलेटिव्स आल्सो. उसके बाद यू आर इन सो मच कि अब सबका अपना अपना चल रहा है. बहन का यही चल रहा है, Correct, मदर वाज अ बिट इल, बाकी जो भी. उस चक्कर में दैट वाज अ बिट ऑफ एस्केपिज्म. तो मेरा यूट्यूब था शायद 5 घंटे मिनिमम पर डे. कॉल्स, आई एम सो गुड एट टॉकिंग फॉर I guess लॉन्ग. people seeing the video will realize this. I love gossiping, but not gossiping also. No, you can accept if you one-to-one. love gossiping. So in other important part, if you play games, even if you have not read books, even if you love gossiping and everything, once you start for CLAT, Leave it. leave it. And if you eliminate it now, I used to study around 11-12 hours in the end. लास्ट 2 महीने में थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं थी. मैंने 6-8 क्योंकि आपने पहले ही इतना प्रिपेयर कर लिया, और कम कर दिया, मतलब ऐसे बंद नहीं कर दिया था. 11 का 9.5 कर दिया, 10 कर दिया. कि सर मैम विपुल भैया ने कहा था 3-4 घंटे पढ़ो मजे करो. नहीं, वो सब तो किया. प्लस पर वो इसीलिए हुआ ना क्योंकि आप ऑलरेडी इतना एफर्ट डाल चुके थे, तो लास्ट में आप रिलैक्स होकर बैठ सकते थे. ये जो मैं कह रहा हूँ ना, 11 घंटे पढ़ा, ऐसा नहीं सब बंद कर दिया. I used to wake up at 8, sleep at 9 again. Then मैं lunch कर रहा हूँ. I used to talk to my parents a lot. I am a person who needs someone कि मैं इससे बोलूँ. So Support system, kind of. Sound box कि मैं Okay, so with respect to your school, I was the sound box, I guess. Okay. एक बहुत important चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, please stop comparing marks. I was a topper at Law Prep Jaipur for 1.5 years almost. मतलब 70 पे तो नहीं, पर there was आखिरी में आते हुए तो मैं top 10 11th में भी था. कुछ एक मॉक्स में थे 11th में भी, एंड इवेंचुअली इन क्लैट तो करी था ही, क्लैट में भी था. और मैं 1 साल तक था. मैंने पूरे साल एक बच्चे से जो क्लैट के लिए पढ़ रहा है अपने मार्क्स डिस्कस नहीं किए. एक बच्चे से. और यहाँ लोग 40 ला के डिस्कस करते हैं, तेरे 50 है मेरे 40. एंड एक और चीज, इफ यू आर थिंकिंग यू आर आस्किंग समवन एंड दे आर टेलिंग यू द ट्रुथ, इट्स द बिगेस्ट लाई. Unless they are friends or something, तो maybe. हाँ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, मतलब तो इसलिए बता रहा हूँ. तो फॉर गॉड सेक, इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो आप ऐसे चलते चलते, आप किसी भी 2 क्लैट एस्पिरेंट को बात करते हुए सुन लो, हर तीसरी चीज उनके मॉक मार्क्स होगी. तो वो बंद कर दो आप, इससे कोई पर्पस नहीं है. आप अपना जीके पढ़ो, आप अपना मतलब जो भी नॉइस है उसको एलिमिनेट कर दो. मैंने बोला I need a sound box. So I used to tell my school friends this कि I am scoring this in CLAT, I am scoring that in CLAT. That's why my commerce friends actually helped me. कि मैं उनको ये बताता था. 1-2 को मैंने CLAT aspirant भी बना दिया. Good for us, I guess. आपको पता चल ही जाएगा एक की आ भी जाए. अच्छा, good. तो आप ये कर सकते हैं, अपने स्कूल वाले या पेरेंट्स से डिस्कस करें. पेरेंट्स का एक लिमिट तक होता है, क्योंकि उनके पास बेस्ट इंटेंशंस है. पर कभी कभार ये होता है वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर उनको बुरा लगता है. तो देयर से अनुपमा मैम से डिस्कस करें, नितिन सर से डिस्कस करें अगर आप जयपुर आ रहे हैं, या फिर आप मतलब दूसरे क्लैट एस्पिरेंट से डिस्कस ना करें. प्लीज मार्क्स डिस्कस करना और परेशान करना, क्योंकि आई वॉज अ टॉपर और I got NLS. I have not told this to anyone watching this. This like 10-15 people know this that I have got this. Right. Correct. ज्यादा मार्क्स डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है बेटा. आप फोकस रखो, क्या चीजें करनी है उस पर ध्यान रखो. जितना आप मतलब यू शुड बी श्योर कि ये मेरे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा. ज़्यादा आपको और वो लोग भी वो होने चाहिए जो जेन्युइनली आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हो. हाँ मैम, मैंने ये स्टार्ट किया था बोलना कि मैंने 6 महीने मतलब अगस्त तक वो किया वीकेंड बैच. फिर एक बार किसी जिसने 7 में स्टार्ट किया था 40 पे उसके 70 आए. उस दिन बड़ा बुरा लगा. फिर मैंने देखा चलो अब कमर कसने की बारी आ गई. तो मैं वीक डे मैच में आ रहा था, तो मैंने मैथ्स वगैरह छोड़ दिया. अब चलो बाद में देखेंगे, ये सब बाद में सब बंद करो. अब पहले मार्क्स लाओ. मतलब आप दैट डिटर्मिनेशन, दैट पैशन होना चाहिए. अगर आप जेलसी बोलो, पर मैं कहूंगा मोटिवेशन है. नहीं, इट्स ए कंपटीशन. ऑफ कोर्स इट्स कंपटीशन, यू कैन फील दैट कंपटीशन. एंड मैंने फिर किया नॉर्मल डे टू डे बैच विद दिस, ये 7 to 7 समटाइम्स, इवन लेटर. वो किया, बहुत मेहनत की 4 महीने.
क्लैट 23 अच्छा गया, फिर 2-3 महीने का ऑफ लिया क्योंकि मतलब आपके एग्जाम्स थे ना। स्कूल के लिए बिल्कुल ढंग से पढ़ा और 11th इतने अच्छे से करी। आई गॉट इन अकाउंट्स फुल इन प्रैक्टिकल पार्ट गुड in 11th, and that's because of my background also. So if anyone's watching and thinking कि अकाउंट्स इसने एक दिन 2 घंटे पढ़ी, इसकी अभी तक चल गई, तो ऐसा नहीं है, आपको बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं क्लास 6 में ये कैश फ्लो वाली यूट्यूब वीडियोस देखता था। अच्छा, क्योंकि वो एस्पिरेशन शुरुआत में मेरे को प्रोजेक्टर बहुत था। पसंद है, मतलब आई हैव इवन वॉच्ड शार्क टैंक स्वीडन एडिशन। मेरे को काफी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। गुड। सो you were playing games, you were watching YouTube, you were watching Shark एंड Tank. वो आप उसको है ना सब आप पिवट कर लो ना, जैसे यू वॉच यूट्यूब, उसमें आप फर्स्ट पोस्ट देखो या प्रिंट देखो, आप वो देखने लग जाओ यूट्यूब पे। जैसे अब मैंने फोन पे बंद कर दिया था यूट्यूब, मैंने अपने जैसे व्हेन यू ओपन योर फोन देयर इज दिस बॉटम वाला जो भी बोलता है जो फिक्स रहता है एप्स, उसमें से मैंने मेरी फोन की व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस ऑफ हैं गाइस, तो मैंने वो सब छोड़ सारा दिया। डिस्टर्बेंस जो है और तो eliminate इसके कर बाद दो, आपको काम की चीजों पे क्वालिटी टाइम मिलता है, जो मैंने कहा ना लेजर और वाली बात, तो मेरे को क्वालिटी टाइम मिला। जैसे मेरे को अपने पेरेंट्स से बात करनी है, मेरे को मेरे किसी दोस्त से बात करनी है, मैं उसमें टाइम देने के बाद 11 घंटे पढ़ सकता हूँ। लोग क्या करते हैं कि ये इंस्टाग्राम पे 2 घंटे यूट्यूब, 2 घंटे कॉल। दिस इज नॉट व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। से आई कैन गो टू अ पार्क एंड रिलैक्स, that's something which everyone watching would enjoy. So I can do that at the same time study, but I cannot do these 4 time waste and study. So I minimize because that. then focus भी चला जाता है, concentration भी चला जाता है। There are some parts you miss a lot of birthday parties, all these stuff. You have to, मतलब आपको समझ जाना चाहिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मेरी 2 महीने के लिए प्रायोरिटी 12th 11th थी, उसमें मैंने 11th में अच्छे से किया। फिर मार्च में जैसे ही मैं पहले दिन आया, आप मेरे साथ बैठे, जैसे आप काफी लोग पूछते हैं कि आपका डेली क्या था। हमने ईयरली प्लान बनाया, मैंने और अनुपमा मैम ने, कि विपुल, क्योंकि टास्क ना लॉन्ग टर्म होने तो चाहिए। आप है ना आज बैठ के ईयरली प्लान बनाओ। इफ एनीवन वाचिंग दिस इज प्लानिंग टू गिव फ्लैट, आज बैठ के प्लान बनाओ मेरे को साल भर में करना क्या है। और ऐसा प्लान बनाने का रीजन ये है कि आपको हर रोज ये नहीं सोचना कि अब मैं, जैसे अगर आपको 10 चीजें बोली जाती है कोचिंग में, मॉड्यूल करो, मॉक करो, मैंने 150 मॉक दिए हैं, 150 लोगों ने 300 दिए मेरे साथ, जिनके मेरे से कम नंबर आए। तो इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। जैसे आई गिव द रीजन फॉर मी गेटिंग स्टक एट 70, मैंने कभी एनालाइज नहीं किया पहले 13 मॉक, फिर उस दिन पता चला कि अब चालू करने की बारी है, उस दिन से एनालाइज किया और लास्ट मॉक भी एनालाइज किया। कभी छोड़ा नहीं। जैसे ये लास्ट में नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे हेल्प करता है, करना कैसे सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे को भी प्रॉब्लम थी, जैसे मॉक एनालिसिस में मैंने काफी ओवर ऑप्टिमाइज किया सेकंड ईयर में। मैंने फर्स्ट ईयर में, फॉर एनीवन वाचिंग, gave only 42 marks and got selected, so you can even that is also reasonably possible. and आप समझो हर चीज का, whenever you do anything in even in life और ऐसे भी ना, हर चीज का एक पर्पस होता है, आपको वो पर्पस से ही करनी है। अब मॉक देते हैं, मैंने बोला ना, मेरे दोस्त 200 250 300 भी मॉक्स इसलिए नहीं देते हैं कि मार्क्स कंपेयर कर सके, मॉक देते हैं ताकि गलतियों से सीख सकें। और आपको पता चलेगा लास्ट 2 महीने में मैम एडवाइस देगी आपको मार्क्स ऐड करना बंद कर दीजिए। आप सेक्शन वाइज से, अभी मैं इंटरव्यू में अगर आप सेक्शन स्पेसिफिक पूछे मेरे से, तो बताऊंगा कि इतने गलत। मैंने कभी मार्क्स पे देखा ही नहीं कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे अटेम्प्ट फुल होते थे रीडिंग सेक्शन में और मैं देखता था गलत कितने। आपको भी सिर्फ उस पर फोकस करना है, और आप हर मॉक में ये 3 चीजें करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली से, अगर किसी के 70 के नीचे आ रहे हैं ना, आई कैन गारंटी कि वो 70 तक आ सकते हैं अगर वो इस वीडियो में जो मैं बोलूँगा इंप्लीमेंट करें। 3 चीजें बस। फर्स्ट, एनालाइज योर मॉक एंड अप्लाई। ऐसा नहीं कि एनालाइज करके दिख रहा है कि जीके क्यूटी में मिला के 40 में से 5 नंबर आ रहे हैं, एनालाइज कर लिया, ये एनालाइज नहीं करना। उसके बाद पढ़ो। उसके बाद दूसरी चीज, आपके जो नंबर कम आ रहे हैं, आप वोकैबुलरी नहीं कर रहे। सी, इट्स डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन फ्रॉम अ गुड स्कूल टू एक्सेप्ट दैट you don't have a very good English. See, I was from a very good school, and the reason for me telling this thing on camera is because I actually felt it's very difficult for a person I am from a good background, but from a non-core English speaking background or reading books background, getting through this examination. So by determination you can get through it. So accept that your weakness, आप पहले तो एक्सेप्ट करो कि भाई यहाँ वीक हैं, और फिर ही आप उस पर काम करोगे। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपका इंग्लिश पे काम करने की जरूरत है। देखो, एक तो आप अपने दोस्त के साथ बोलचाल में जो इंग्लिश बोलते हो और जो कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश आती है, वो बहुत फर्क होता है, और स्पेशली रीजनिंग वाले क्वेश्चन। हाँ, तो ये 2 चीजें। एंड थर्ड चीज इज कि जैसे आपके इसमें एनालिसिस में भी एक और सब डिवीजन करें, आपके 2 गलतियां होती हैं। एक होती है सिली मिस्टेक जो आप खुद देख के समझ आते हैं, एक होती है रीजनिंग मिस्टेक। रीजनिंग मिस्टेक के लिए क्या करना है, डाउट्स पूछो। मैंने लास्ट 6, आई थिंक कोचिंग का ये पर्पस नहीं होता कि आपको क्लासेस लें, तो क्लैट से दिख गया क्लासेस इज वर्थ
only till a certain टिल time. कॉन्सेप्ट, आपका एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, Main उसके जो- बाद मेन फोकस जो है वो मॉक और Say एनालिसिस this is the best thing अगर if you are watching and wanting to join law prep, this coaching has the best doubt possibility. मैंने और मैम ने रात के 12 बजे भी CR के डाउट डिस्कस किए हैं. Correct. We have discussed it. We had at any time. Like if you are interested, that is like it's like advertising us. But yes, it is kind of, it's on Law Prep channel. Like if you are a student at Law Prep and if you want a doubt, you have to ask. Just ask. हो सकता है sometime कोई टीचर कभी बिजी हो तो थोड़ा आपको कहे कि बेटा कल आना या परसों आना, पर 101% इंटेंशन ये नहीं होगा कि नहीं लेना है, डाउट्स लेना, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि ये पेपर रीजनिंग का है, एंड जैसे तो मैं उसमें डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में सबसे इंटरेक्टिव होता हूँ. एक बार स्टार्ट हो गई क्लास, सपोज पहला दिन है तो 3 बच्चे बोलते हैं, फिर 2 बच्चे बोलते हैं, फिर 3 महीने तक सिर्फ मैं बोलता हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि आई आस्क वेरी गुड डाउट्स. आई थिंक द बेस्ट स्किल अबाउट डाउट्स, ऑलवेज आस्क डाउट्स. देखो क्या है बेटा, जो डाउट्स नहीं पूछते हैं उनको तो you वैसे look नॉलेज fool नहीं for 5 minutes after हाँ, asking a doubt. You correct. are a fool all your life if you don't. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली. आप डाउट पूछो तो आपकी 2 गलतियां. सिली मिस्टेक है तो आप जैसे जो फर्स्ट पेज होता है ना, आपने जहाँ लिखे हुए इस नंबर से इस क्वेश्चन है, तो आप उसमें लिखो अपनी नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स कितनी. जैसे इंग्लिश में 2 हुई तो +2 लिख दो. जीके में 3 हुई, जीके में कैसे हुई कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो गलत किए तो +3 लिख दो. ऐसे करके लिखो, आपको रियलाइज होगा 15 नंबर तो मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, पेपर जो गलत हो हाँ, गया. पेपर ढंग से पढ़ना चाहिए था, रिवीजन नहीं किया, उससे रिलेटेड हो सकता है. तो मॉक एनालिसिस पैनिक कर गए क्यूटी में, हाँ, लास्ट में उठाई क्यूटी, ऐसा कुछ गलती करके. तो आपकी ये 2 मिस्टेक. रीजनिंग की मिस्टेक है तो डाउट पूछो. डाउट पूछने में हर भी तरह की मिस्टेक को एनालिसिस में लिखिए. हाँ, डाउट पूछने के बाद क्या करना चाहिए, जैसे दिस इज वैसे तो मॉक का भी एनालिसिस करना चाहिए. डाउट पूछने के बाद उसका एनालिसिस करो जीके लीगल में. जीके में नहीं, सीआर लीगल में क्या करता था, आप अपनी कॉपी लीजिए, आप उसके पीछे लिखिए कि आर्ग्यूमेंट की बेटर अजम्पशन होती है कि वो अजम्पशन भी जो करे. बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और जितनी बार आप डिस्कस करेंगे उतनी बार रिवाइज होगा. और एक्सेप्ट करो कि यार मैं भूल गया था. बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ठीक है याद आ गया. याद नहीं, आप भूल गए थे, इस बात को मानो और लिखो. जस्टिफाई करो गलत क्यों हुआ, मेरा क्या गलत सोचा मैंने, वो आप जस्टिफाई करो. Correct. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड इसके अलावा जैसे आपने ये, मैं 2 रीजन तो बता दिए कि आपके 70 से नीचे क्यों हैं. आप एनालाइज नहीं कर रहे, आप इंग्लिश पे वर्क नहीं कर रहे. अगर आपके फिर भी नहीं है तो आप पढ़ नहीं रहे. तीसरा रीजन ये है, सिंपल सी बात है. सी देयर आर 5 सेक्शंस. इस बार क्लैट में नहीं आया तो उसका ये मतलब नहीं आगे नहीं आएगा. इन 12th when in 2023 I have worked 3 times more than I worked in 11th, and I devoted all my time to QTGK. Paper में I could have scored the same marks, but it doesn't matter. I know the level I am. I was an audience in a debate and there was a shortage of 1 person. I went on stage and got the 3rd prize. That was possible because of me studying so much GK and being so aware. If I talk to someone right now, they would understand कि okay, this is a person who is worth talking to. Yes. तो बेटा एक्चुअली ये चीज़ मैं वैसे भी बताती हूँ कि जब आप क्लैट की तैयारी करते हो तो आप सिर्फ क्लैट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो. जो एग्जाम या ये जो पेपर है इसकी तैयारी से ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि आप जीके पे भी फोकस कर रहे हो, आपकी वोकैब इंप्रूव हो रही है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो रही है. मतलब जो कि विपुल ने स्टार्टिंग में बोला कि भाई इससे अच्छा पेपर क्या मिलेगा कि तुमको किताबें पढ़नी है, अखबार पढ़ने हैं और टीचर से बहस करनी है. मतलब यही तो तैयारी है इस पेपर की. एक्चुअली यही है. और जैसे कि है ना, दिस इज द बेस्ट थिंग. आई हैव आस्क्ड सो मेनी डाउट्स. और आपको कभी डांट पिटे तो दैट्स अ गुड थिंग. हाँ, इसको उससे हर्ट होने की जरूरत नहीं कि टीचर ने डांट दिया, कोई बात नहीं ना, आप टीचर से बहस कर रहे हो. आर्ग्यूमेंट किए मैंने. जैसे एवरी टीचर हैड टोल्ड मी, सर मैम विपुल बहुत आर्ग्यू बहुत करता है. मैंने कहा सर अब करेगा, अब क्या करे, रीजनिंग है तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा. आई थिंक ये सोसाइटी की गलती है कि वो बच्चा चलो स्कूल वो सब चलो अलग बातें हैं. लेट्स फोकस ऑन दिस आल्सो. तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट you have talked about how English is important, how reasoning is to be done. You have talked about mock analysis. Quant पे भी you had worked. हाँ, I was telling ना कि 12th में मैंने GK QT इतना पढ़ा है. मैंने GK में I had 8 sources. And 8 sources I had BBC, I had print, I had Telegraph. So anyone who is going to get enrolled in law prep. And ये सब आपको GK में तब करना है जब आपकी reasoning और ये सब sorted है. आपके टारगेट आपको क्लियर होने चाहिए. मेरे को पता है मेरा एनालिसिस होगा. करो, हाँ पहले बेसिक्स करो, वो हो जाए फिर एक्स्ट्रा चीजें करो. आप कोई भी वीडियो देखते हो कि यार उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा कर लूं, पर पहले उसके फंडामेंटल स्ट्रांग थे बेटा. तो फंडामेंटल रीजन समझो बोलने का.
करेक्ट। आप जस्टिफिकेशन मत ढूंढो कि इसने बोला जीके पढ़ो, मेरे को पसंद है, मैं और पढ़ता हूँ। आपको डू व्हाट वर्क्स, नॉट व्हाट यू वांट टू डू। आप वो चीज़ मत करिए जैसे जो आप ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको करते रहेंगे। मैंने देखे हैं मैम, जीके के डाउट क्लास में 2 घंटे आप है ना, डू दिस थिंग ना, आई यूज्ड टू डू, आई ऐसा भी नहीं आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, मैंने बोल दिया 11 आवर्स तो सब लोग ऐसे हो जाएंगे। आई हैड दिस 4 आवर मैक्स टू मैक्स इन, वो भी बहुत मुश्किल था जब मैंने हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर स्टार्ट किया था, तो दिस 4 आवर 1 आवर अखबार। इवेंचुअली यू ग्रू into this person And उसका eventually with reason है, progress. I used to write, ये भी टॉपर इंटरव्यू से सीखा हुआ है कि I used to write every day कि what I had to do in number of hours. See, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अगर ये एडवाइस कंसिडर करें, this is a very good advice, but still a certain point. ये जैसे जिससे मैंने ये सुना था उसने ये नहीं कहा था, so आप आगे पिवट मतलब जैसे मैम ने PI सेशन लिया था तो मैम ने कहा था 9 घंटे पढ़ो, 4 से मैंने 9 कर दिए, पर फिर मैंने 9 से 10 नहीं किए। ये फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ 6-8 महीने बाद कि नहीं, बिल्कुल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपर लिमिट 11 घंटे रख लीजिए, और 11 घंटे में ऐसा नहीं, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग 11 आवर्स विद अ मॉक एंड डाउट्स एंड स्टडीइंग 8 आवर्स जीके। तो आप ये समझिए कि मैंने लास्ट 4 मंथ्स जीके क्यूटी, लास्ट 1 साल जीके क्यूटी किया है, जो मेरे को नहीं पसंद। मतलब क्यूटी आई एम गुड एग्जैक्टली, बिकॉज देखो विपुल ने जब एग्जाम दिया था लास्ट ईयर तो उसका स्कोर से हमने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग करी है डिस्कशन से कि भाई देखो रीजनिंग आपका अच्छा हो गया है, वो कैप पे आपने काम कर लिया तो वो अच्छा हो गया है, बुक्स पे आपने काम करा है तो वो अच्छा हुआ है, पर अब जो है जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो करने पड़ेंगे। अब आपको जीके करना पड़ेगा, अब आपको क्वांट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर का कोई भरोसा नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर थिंग्स तो जीके पे भी काम करो और क्वांट पे भी काम करो। और इसमें मैं आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे अगर लोग है ना ऐसे लीगल की बुक्स ढूंढो, देयर दिस कौन सी बुक है वो बड़ी LR की आती है ना एक, सब लोग मंगा लेते हैं, आई थिंक मैंने भी AP भारद्वाज, हाँ वो सब मंगा लेते हैं, किसी काम की नहीं है। अगर आपको लीगल में मार्क्स बढ़ाने, देयर इज अ शॉर्ट वे, गिव मॉक वीक्स ऑफ लॉ प्रेप, you will increase marks. There are a certain number of problems, with analysis obviously, with मतलब आपकी एक certain number of mistakes है और एक certain number of questions है। जैसे I am scoring legal में 32 में से 31 with one objection, which is if CLAT doesn't accept, they are मतलब okay, they should. हाँ they should. Okay, हाँ they should, okay, हाँ politically correct, हाँ तो जैसे लीगल में आप बस मॉक दीजिए और लगातार देना एंड में, तो इट वुड वर्क विद एनालिसिस। मतलब मैंने 7 दिन जितने भी मॉक दिए हर एनालिसिस किया। आई वाज प्लानिंग टू आस्क यू कि भाई हु ऑल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, बट आई गेस यू हैव ऑलरेडी सेड योर स्कूल फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, एंड आई दिस रैंक एंड ऑल दिस स्टफ, this is what I dedicate to my father. He was a bit, he suffered a setback, a health setback just 2 or 3 days yes before. I had I was talking to Vipul, and then I went to meet him just before the exam, and I got to know that his father had to go through a serious surgery, let's say that, and he's fine right now, he's healthy, he's with us just before exam, and that moment also actually I'm very proud of you for that, कि घर पे इस तरह का कोई घर पे बहुत सीरियस पेरेंट्स से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम और उसके बावजूद भी आप कूल काम रह के फोकस रह के पेपर देने जाओ। My father is my inspiration, and I think it's because of him and my mother that I have gone through this, and I think law prep पे भी I have had so many good teachers. You have to add now. No, actually genuinely, see, ma'am is not my relative, तो ऐसा नहीं है कि she is, और I have some IAS background कि there's वैसे वो कोई differentiating होता नहीं है, but जैसे it's not like कि there's something which is very good in me या फिर in my background I would say कि ma'am helped me. It's because I was always there to ask. Yes, with every teacher. That's very honest. That's very true. तो हर टीचर के साथ आप सवाल पूछो, आप पूछोगे तो जवाब मिलेगा, है ना। उससे पर्सनली कि यार एक बार जवाब नहीं मिला या 2 बार नहीं मिला, हो सकता है हम कभी बिजी हो, नहीं भी बिजी हो, बट आप प्लीज आस्क क्वेश्चन। इवन द रीजन वाई जो कि उसने बताया कि पहली बार भी जब मिले तो मेरे को जो हमको जैसे बच्चे पूछते हैं, आज वन स्टूडेंट वाज आस्किंग मैम आपको कैसे पता चलता है बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो देयर आर सिंपल थिंग्स यू डू। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे बताना चाह रहे, वो इसलिए क्योंकि आप खुद अपने गोल के लिए सीरियस हो, तो आप सवाल पूछते हो, आप आगे बैठते हो, या आप कुछ अपने एक्शन से शो करते हो कि आप इस गोल के लिए सीरियस हो या हो सकते हो। दैट गिव्स अस होप कि ये बच्चा जो है इस पे थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और क्लैट में तो
प्रायर नॉलेज चाहिए ही नहीं वैसे भी, तो आप थोड़ा भी सिंसियरली हार्ड वर्क करते हो तो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट. And it's not about that one sacrifice or one birthday party or ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की, but it's about the statement. I have given every single mock of law prep. Law prep conducted 75 normal mocks, 16 speed drills, 8 this extra advanced mocks. Right. Advanced mocks in 2023 and 2022 के भी दिए. हर एक, I was ill and I came to weekend batches. That was not because, and that's not advised, but that's because I had that kind of zeal. Determination. You need that hunger. But that's the actual thing which is needed. Ultimately, if you have that hunger, you should really like what you do, and then you can get through this. इतना सारा पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. आपको खुद को होना चाहिए सपना. And see, 1 minute I would like to say कि what वो होता है ना कि क्या motivation मिले, उसके भी तरीके हैं. जैसे अगर कोई motivation चाहिए तो there is this Pradeep Rai interview कि how much lawyers earn and this stuff on YouTube. Go watch it, you would get motivation for 2 months for sure. Good. प्रदीप राय का इंटरव्यू. हाँ तो ये भी recommendation है. नहीं तो there are simple ways to get motivation. See, it's I as a person choosing CLAT, which is different. See, from me becoming a CA is comparatively simple because I have that kind of background. My father has his practice for 30 years and I have my parents. I am technically a second generation lawyer because my mother is also a lawyer, but she is a practicing CA. वो तो ऐसे हैं. But जैसे it's like it's my choice and I made it work. हाँ तो आप अपना डिसीजन ले रहे हो तो उस पर काम करेंगे ना भाई, अपना डिसीजन लेके, राइट. सो आई बिलीव विपुल यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट आई वाज गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज एंड विदाउट मी आस्किंग, सो दे started and left a lot of topics also. No, you have covered how you went through, what are the, how you went through whatever problems you had, the friends वगैरह हैं. The reason I am being this vulnerable in this interview and telling a lot about my personal life and all this stuff is because if anyone is watching this and thinks if they suffer this setback or this setback, they can actually get through it. It's not about that. And see, a lot of people who have not worked very hard would also get through this year because of a bad precedent. But the point is, if you work hard, I have no qualms in saying that I have worked hard and I got through. I could have performed even better, but it's fine. It's life. Right. देखो everyone, the point is, बहुत सारे जो सेटबैक्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं जिनके हम एक्सक्यूजेस बना सकते हैं चाहें तो, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार छोड़ो एक्सक्यूज़ की बजाय और पढ़ो. और बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई है, आई जेन्युइनली थिंक. और जिन्होंने जब भी स्टार्ट की मेहनत की तो उनको ये जो कोर्स है इसमें मज़ा ही आता है. तो इफ़ यू एंजॉय द कोर्स, द जर्नी बिकम्स मोर ईजियर and the success becomes more sure. I want to thank a lot of people. वो वाली बात है. Yes. So who all you want to thank? So firstly, my friends. See, I have been a bad friend for the past 2 years. I have not went to places. I had mood swings. All that stuff. I had minimized that, but they were with me. My family, my parents, even my sister is inspiration. Though she was not here in Jaipur during the preparation time, but she is an inspiration. I think it's because I have seen her work that hard for JEE that see, me studying this much is nothing compared to her. And then to my teachers, from the bottom of my heart to you, ma'am. Thank you. And then a lot of law prep teachers who have actually helped me. See, in life also you get a lot of good people. You should work hard with them. You would reach a point. I had reached a point when Anupama ma'am told me, Vipul, you know more CR than the question maker. 2 or 3 weeks before CLAT, Nitin sir and me were discussing doubts. So we were discussing doubts and he said कि Vipul मैं पिछले 2-3 बार से notice कर रहा हूँ. You have developed reasoning as good as a faculty here. So you should get to that level. You can clear CLAT without getting to this level also. I cleared CLAT without getting to this level last year, but now these words inspire you and make you feel. That's the point of doing this. See, college is obviously a very big important thing which I have to do and you have to do. So that's a target. But see the personality building. You get so much recognition in school and even your school teachers cooperate and they see, I am a very fast and good learner. So I maximize on that and I never shy away from asking. You should develop these qualities. It helps. So my friends, my family,
My teachers, a lot of teachers, Ayush sir, Ritesh sir, Nitin sir, Pandey sir, Azad sir, Sukesh sir, so many teachers, Anupama ma'am, even online, offline. किसी को मिस तो नहीं कर दिया अरे Just कम से call कम me. आशीष सर, so many teachers. I am missing at least 10 teachers who have helped me, and I think that is the reason why I am here giving this interview. Right, right. So thank you so much, Vipul, for sharing so much about the stuff students would relate to, I believe, right? The reason is that I want someone to, because I didn't find these type of videos. So I have specifically, after analyzing 150, You have analyzed 150 videos and you have 150 decided mocks and 150 videos. you have decided कि यार ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए जो बताए कि ये देखो ये सब गड़बड़ भी हो सकती है, उसके बावजूद आप अच्छा कर सकते तो हो। मेहनत करने के बाद। हाँ, मेहनत करने के बाद, मेहनत करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। होपफुली विल डू अ लाइव विथ यू, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली चीजें पूछेंगे एंड यू विल बी मोर यू कैन हेल्प If anyone here can reach out to me, I would be willing to help. Like, राइट, सो यू आई गेस यू विल बी फ्री आफ्टर बोर्ड्स तो पूरी तरह से। वैसे भी अच्छा, वैसे भी ये फ्री है तो boards यार तो- खूब आपको हाँ। हेल्प कर देगा अगर आप विपुल को रीच आउट करना चाहते हो मतलब तो। obviously there is a place and time for everything, but हाँ, मतलब पर आप रीच आउट करोगे तो he'll help you out also, and I hope you are inspired. You now know कि ठीक है, आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे किसी भी पहले क्या करते थे या पहले क्या आपका इंटरेस्ट हुआ करता था, उन सब से फर्क नहीं पड़ता। अगर गोल सेट करके उस पर आप लग जाओ तो 101% आप एक्सेप्शनल कर सकते हो। और आपको रिजल्ट मिलेगा। सी यू वुड गेट अ लॉट ऑफ पीपल कि आप बोलोगे कि इसका कैसे हो गया, बट आई नो कि यू वुड गेट द रिजल्ट एंड हार्ड वर्क से तो रिजल्ट मिलेगा। एंड आपको से दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग, दो वी आर एंडिंग द इंटरव्यू, बट सी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। फर्स्ट इज the work you put in, and second is mental. I think this year I have worked towards the mental part also, and that has taught me a lot of things in my life also, कि how to respond to this situation or this emergency or that. हाँ, देखो आप सिर्फ पेपर के लिए मत सोचो, आप ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में सोचो। So it helps in that thing also. So it's a added benefit. So you should even help work on the mental aspect ki it's always highs and down. I have come at least 20 times to Anupama ma'am ki ma'am CR नहीं हो रही. So That happens, it's accepted, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। it's not difficult to get 20 right in law prep examination. It's difficult to get 18 right in 10 exams together. True. Correct. Thank you so much, Vipul. I hope you guys have enjoyed, and we'll bring Vipul live so that you can ask a lot of questions. He can guide you through, and possibly in some offline interactions also, we'll call you, to interact with the 2-year student, to tell them कि अभी से पढ़ लो थोड़ा, right? हाँ, मतलब it's a chill interview, because see, if you would have kept the camera on, we could discuss for 2-3 hours. But the problem is कि we have to. we have to limit, and you should not waste time also. That's also important. पता चला कि चलो एक हो गया, 150 तो देखने हैं। 150 तो देखने, ऐसा नहीं। मतलब utilize your time. मतलब I would say, even if you are not a CLAT aspirant also, try this na, and see, there are 2 books you should read. First is You Can Win Right Now and Order Power of Your Subconscious Mind. Don't read it. Please don't read that book right now. Just 1 month before the examination, because after reading you will see कि छोड़ो पढ़ना है तो जो उसने बोला उसका सबकॉन्शियस से हो जाएगा। वो 1 महीने पढ़ो एग्जाम से पहले, और 30 days per day, और अभी You Can Win पढ़ो तो वो आपको जगा देगा कि आप सब गलत कर रहे हो। I would ask you, Vipul, because we have talked about so many things. I want to request you that if you write a write-up about how to go about your CLAT preparation, recommending books and recommending all these things, I think my students would they'll appreciate it, and they'll have something in hand to go back to. I am a good writer also. I am planning to write a blog. That's why I'm asking you. I actually want to stay connected with you, ma'ams, and also with this CLAT thing, na, because I genuinely love the exam also. It's not just that I want NLS or this college. I genuinely love the exam. So obviously I would like to help if anyway. Sure. We'll call you for the student interaction as well. And plus, एक write-up में ना, all the books you read and all those analysis. And I think it's the best and most succinct way to convey. So correct. Watch out for that on LPT website and LPT portal पे we'll upload, or probably on Telegram channel or yes. something. We'll upload it under the video, or some live interview में we'll upload it. जहाँ पे कि in short about आप CLAT. उसमें देखोगे कि मैंने बहुत चीजें, मैंने CR की इसे we have not went too deep. We will go very deep in the coming interview. पर section क्या करना है वो live वाले में कर लेंगे. Correct. तो
तब तक के लिए वेट, stay tuned. Okay, stay tuned everyone. So you can see my interviews with Vipul are going to be far more lengthy right now because I'm summing it up and bringing the interview to end. I hope you have gained insight to CLAT preparation with this interview, and I'm so very proud of you, Vipul, for the way you have worked hard, and I believe everyone in the Law Prep is very, very proud of you. So okay everyone, bye bye, but do what, subscribe, Like, share and subscribe. like, share I and have a subscribe, YouTube बेल आइकन को भी आपको दबाना है aficionado. और क्या करना है बस, हाँ ठीक है, like, comment is also essential. Okay everyone, so thank you everyone, bye bye, take care, enjoy. Thank you.